हाँ स्टूडेंट, नाउ once again I will take the revision of this derivation. So what we have done, हमने क्या कंसिडर किया था कि डायपोल कंसिडर किया था. दिस इज द डायपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a distance, and this dipole is kept in a uniform electric field, and this dipole is making an angle theta with the electric field E. So there are two forces, one is on the plus q, another is on the minus q. Plus q force is in this direction, minus q force is in this direction. Both these forces are equal and opposite. Since the forces are equal and opposite, they form the couple, and because of the couple separated by a distance, a torque is acting on it, and we have derived this relation just now. The torque acting on the electric dipole placed in the external electric field is given by tau is equal to PE sin theta. ये जो डेरिवेशन है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल डिराइव कर लिया था फर्स्ट चैप्टर में. अब अभी हम क्या कर रहे हैं, वो डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली हम इधर यूज़ कर रहे हैं. तो अभी ये तो हमें मालूम पड़ गया है कि इस टॉर्क के ऊपर, ये जो डायपोल है, डायपोल के ऊपर फोर्स गिरने से क्या हो रहा है ना, टॉर्क एक्टिंग हो रहा है. तो टॉर्क होने से क्या हो रहा है, दिस डायपोल इज रोटेटिंग बाय एन एंगल थीटा. सो व्हेन इट इज रोटेटिंग, व्हेन इट इज मूविंग बाय एन एंगल, रोटेटिंग बाय एन एंगल थीटा, torque is formed. So torque is equal to P sin theta. With this we have seen that P is equal to electric dipole moment, E is the electric field, theta is the angle between P and E, and this torque is rotating the dipole. So when this torque is rotating the dipole, so now how much it will be rotating, that we have to see. So we'll consider that small work done in rotating the dipole through an angle d theta without acceleration. So it is given by what, dw is equal to tau into d theta. When it is dw is equal to tau into d theta, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और अब ये इक्वेशन 2 में क्या किया, इक्वेशन 1 का फॉर्म वैल्यू पुट कर दिया. इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है, टो इज इक्वल टू PE sin theta. Tau is equal to what, PE sin theta. So when we will put the value of tau from equation 1, PE sin theta into d theta, so ये हो गया dw का वैल्यू. So dw is the small amount of work. When it is small amount of work done, when the rotating of the angle is small theta, d theta, therefore now what I have to do, I have to find out the total work done. To find out the total work done, what I have to do, I have to integrate this. When I am integrating, so I have to put the limit theta 1 to theta 2. So हम क्या करेंगे, w फाइंड आउट करने के लिए dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कहाँ से कहाँ तक, theta 1 से theta 2 तक. सो dw का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया. यहाँ पर dw का वैल्यू क्या है, PE sin थीटा d थीटा. अब ये dw का वैल्यू इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन 3 में. सो जैसे हमने इस इक्वेशन 3 में पुट किया, PE क्या है, कांस्टेंट है, PE बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा, थीटा 1 इंटू थीटा 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा विल बिकम व्हाट, minus of cos theta. When integration of sin theta is becoming minus cos theta, but what we have to do now, we have to substitute the value of what, theta 2 and theta 1. तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, cos theta 2 माइनस cos theta 1. आउटसाइड माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos 2 थीटा आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस साइन हम पहले लेंगे. तो PE cos theta 1 माइनस cos theta 2, दिस इज द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल एज द पोटेंशियल एनर्जी. सो इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू PE cos theta 1 माइनस cos theta 2. सो इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द E, थीटा 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. अब थीटा 1 90 डिग्री होगा, देन ब्रॉट टू एन एंगल थीटा, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा होगा. इनिशियली अगर हम कहते हैं कि ये अभी इस केस में हमने ऐसा कंसिडर किया हुआ है, इनिशियली ये थीटा है, डाइपोल है थीटा, अब ये परपेंडिकुलर है तो थीटा 1 का वैल्यू क्या रहेगा, 90 डिग्री. मगर इसको अभी इस डाइपोल को हम एंगल से चेंज कर रहे हैं, कितना एंगल से, थीटा एंगल से. सो थीटा 1 का वैल्यू 90 होगा, थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा. सो यहाँ पर अभी मुझे डिराइव करना है, इफ़ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, थीटा 1 का वैल्यू क्या रहेगा, 90 रहेगा. मगर उसके बाद थीटा 1 के बाद थीटा 2 क्या किस में आ रहा है, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बिकम U इज इक्वल टू PE cos ऑफ थीटा 1, तो cos ऑफ 90 माइनस cos थीटा. व्हाट इज cos 90, cos 90 is 0, cos 90 is what,
0. So u इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा. सो तो टोटल एनर्जी विल बिकम माइनस पी ई कॉस थीटा. क्लियर हो गया. अब ये u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हो गया अपना टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डाइपोल. अब ये डाइपोल आने के बाद अभी u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा. अब कंडीशन बनता है कि डाइपोल स्टेबल कब रहेगा, डाइपोल अनस्टेबल कब रहेगा और डाइपोल ज़ीरो कब रहेगा. ये तीन केसेस हमको अभी पढ़ना है आगे. तो पहले केस में हमने क्या पढ़ा, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, मतलब u इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल विल बिकम माइनस पी ई कॉस थीटा. अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल हमने पढ़ा था. टॉर्क इज इक्वल टू ड्यू टू ए डाइपोल, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है. ओके, तो पी ई साइन थीटा लेके हमने इक्वेशन डिराइव किया. अब हमें क्या करना है कि इस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल कितना रहेगा, माइनस पी ई कॉस थीटा. ये फाइनल इक्वेशन आ गया. मगर ये इक्वेशन डिराइव करने के बाद समटाइम्स इन द एग्जाम दे विल आस्क दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा रहेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी. मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब रहेगा, अनस्टेबल कब रहेगा और जीरो पोटेंशियल कब रहेगा. ये अभी हमें तीन स्पेशल केसेस देखने हैं सेम डेरिवेशन करने के बाद. सो फर्स्ट केस क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन P इज पैरेलल टू E. P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. P और E अगर पैरेलल रहेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. पैरेलल के केस में थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री. अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो यदि मैं 0 का वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, तो कॉस 0 इज व्हाट, 1. तो u इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी ई, माइनस इंटू पी इंटू ई. सो माइनस साइन आ गया, मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. मिनिमम क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज u इज इक्वल टू माइनस, whenever minus sign comes it becomes minimum. So this is the minimum potential energy. In this position dipole will be in the stable equilibrium. dipole क्या रहेगा, stable equilibrium रहेगा. फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया. सो फर्स्ट कंडीशन के केस में हम बोलेंगे दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड इन दिस पोजिशन द डाइपोल विल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब सेकेंड कंडीशन है पोजिशन ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब रहेगा, when the P is anti parallel to E. एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, व्हेन P is anti parallel to E, that is थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन कॉज ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाएगा, -1. कॉज 180 डिग्री कितना होता है, -1. तो ये माइनस एंड दिस माइनस, कॉस थीटा की जगह में -1 पुट करूँगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो मेरे पास u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई. तो अब देखो अगर p और e एंटी पैरेलल होते हैं, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तब दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. इन दिस पोजीशन द डाइपोल विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्लियर हो गया. सो जब u इज इक्वल टू पी ई बनता है तब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगा वो डाइपोल को क्या करेगा, ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा. क्लियर हो गया. अब जब ये अनस्टेबल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, थीटा जो बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है. मतलब P और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब कंडीशन कैसे होगा, अगर हम डायग्राम में देखते हैं, P और E अनस्टेबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P इस तरफ है या फिर E इस तरफ है तो P किस तरफ रहना चाहिए, इस तरफ रहना चाहिए. मतलब ये जो डाइपोल है ये ऐसा रोटेट हो गया या फिर ऐसा रोटेट हो गया तो क्या हो जाएगा, P और E दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे. तो ये कितना एंगल बनेगा इसके बीच में, 180 डिग्री बनेगा. सो व्हेन इट इज़ मेकिंग 180 डिग्री, ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा कंडीशन क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा.
मगर ये क्या होगा, डाइपोल क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। व्हेन इट कम्स इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो कंडीशन इसका क्या है, अभी 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, दे में आस्क दैट व्हेन द डाइपोल विल बी अनस्टेबल, at what angle the dipole will become unstable. So what you have to write, when theta is equal to 180 degree, the dipole will become unstable. And when we will suppose they will ask the question, when the dipole is stable equilibrium, what is the condition for the stable equilibrium of the dipole? तो क्या अभी हमने क्या देखा, theta is equal to 0, मतलब when P and E are parallel to each other, then theta becomes 0, therefore u is equal to minus PE, the position becoming stable equilibrium. So stable equilibrium position के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। अनस्टेबल के लिए कितना होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए, यह अभी हमने देखा। सो अनस्टेबल के केस में दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इन दिस पोजिशन द डाइपोल विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा तो मतलब थीटा क्या रहेगा, ये यू क्या वैल्यू रहेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया है। माइनस के केस में मिनिमम हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो गया। अब तीसरा कंडीशन है पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट, व्हेन पी इज परपेंडिकुलर टू ई। इसका मतलब क्या है, जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो हम क्या करेंगे, cos 90, u इज इक्वल टू माइनस पी cos 90। cos 90 कितना होता है, 0। सो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट, 0। तो u का वैल्यू क्या हो गया, 0। व्हेन cos 90 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू बिकमिंग 0। सो इन दिस पोजिशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज 0, and when the potential energy of the dipole is becoming 0, at what condition, when P is perpendicular to E, when the electric dipole is perpendicular to the E electric field, that is means theta is equal to 90 degree, at that particular time the position becomes 0, potential energy will become 0. So ये derivation complete हुआ कौन से basis के लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल यूजिंग द 3 कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस हमें याद रखना है। पहले कंडीशन में इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये डेरिवेशन किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल का। और इस इक्वेशन के साथ हमें 3 कंडीशंस कंसिडर करना है। पहला कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा कंडीशन है पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टेबल कब रहेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी और ई दोनों कितना क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। दूसरा कंडीशन कब बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, व्हेन पी एंड ई आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में। यदि मैं कहता हूँ ई इस डायरेक्शन में है और पी इस डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल होगा। तो एंटी पैरेलल के केस में थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। मगर कॉज ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू कितना है, -1। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो मेरे पास फार्मूला क्या आएगा, u इज इक्वल टू पी ई। तो ये जो कंडीशन बनेगा ये किसके लिए बनेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का बनेगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमें क्या याद रखना है कि ये जो डाइपोल है वो अनस्टेबल रहेगा ज़्यादा। तीसरा कंडीशन है पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगा, जब P इज परपेंडिकुलर टू E, मतलब P ऐसा है और E इस तरफ है, तो थीटा क्या बना, 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री होता है तो cos 90 कितना होता है, 0। एंड एज सुन एज cos 90 is 0, so u will become 0, so potential energy will become 0। सो इस तरह से
ये आज हमने टोटल कॉन्सेप्ट कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एंड रे। तो आज ये क्या करना है, ये पूरा का पूरा दोनों के दोनों पेज लिख के रखना है नोट्स में। बाकी का फिर कल देखेंगे।